کاشتکاروں کے سر پر ایک اور تلوار لٹک گئی۔ کسان کارڈ کی رقم جمع نہ کروانے پر فصل بہ کے سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ کاشتکار 4 جولائی تک قرض کی رقم بلا سود جمع کروا سکیں گے۔ واجبات ادا نہ کرنے والے کاشتکاروں کو دوسرے مرحلے میں قرض فراہم نہیں کیا جائے گا۔ کسان کارڈ سے حاصل کردہ رقم واپس جمع نہ کروانے پر کاشتکار کی فصل بہک کے سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ کاشتکار 4 جولائی تک قرض کی رقم بلا سود جمع کروا سکیں گے۔ کسان کارڈ کے پہلے مرحلے میں ٹوبہ کے 28,000 کاشتکاروں نے قرضہ حاصل کیا، جبکہ کسان کارڈ ریکوری کا 98% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ کسان کارڈ ہولڈر 4 جولائی تک قرض کی اصل رقم جمع کروائیں۔ واجبات ادا نہ کرنے والے کاشتکاروں کو دوسرے مرحلے میں قرض فراہم نہیں کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی مدد لے رہے ہیں، اگر وہ جمع نہیں کروائیں گے ان کی زمین پلج کر لی جائے گی، فصل کرک بھی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق، اور کسی قسم کے آئندہ آنے والی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کاشتکار کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے قرض کی رقم فوری واپس جمع کروائیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس قوانین میں ترمیم، جعلی انوائسز، غلط ریٹرن یا کاروبار کا بوگس ریکارڈ دکھا کر ان پٹ ٹیکس، کریڈٹ ٹیکس فراڈ تصور ہوگا، جس کی سزا 5 سال تک قید اور جرمانہ ہوگی۔ ایف بی آئی ٹیکس قوانین میں ترمیم، ٹیکس فراڈ کے قوانین میں مزید سختی کر دی گئی۔ جعلی انوائسز یا غلط سیل ٹیکس ریٹرن ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گی۔ کاروبار کا بوگس ریکارڈ دکھا کر ان پٹ ٹیکس، کریڈٹ ٹیکس فراڈ تصور ہوگا۔ سیل ٹیکس فراڈ کی سزا 5 سال تک قید اور جرمانہ ہوگی۔ انکم ٹیکس فراڈ کی سزا بھی 1 تا 5 سال ہو گئی ہے۔ ایف بی آئی حکام کے مطابق قوانین میں سختی سے ٹیکس فراڈ کا راستہ روکنے میں مدد مل سکے گی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ادویات کی فراہمی میں مشکلات، مریضوں کو ادویات کی 100% فراہمی صرف دعووں تک محدود۔ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات میں سے بمشکل 2-3 ہی ملتی ہیں۔ ادویات کے لیے نجی میڈیکل سٹورز پر جانا پڑتا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی 100% فراہمی کا خواب چکنا چور۔ اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں مریض خوار ڈاکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 7-8 میں سے 2-3 ادویات ہی فارمیسی سے ملتی ہیں۔ مریض کہتے ہیں باقی ادویات کی خریداری کے لیے باہر کا گیٹ دکھایا جاتا ہے۔ ایک نے بتایا فیکٹری مزدور ہوں، ادویات کی خریداری پہنچ سے باہر ہے۔ بزین دی دوائی نہیں ملن رہی پوری، 2 پتے ملے صرف، باقی باہروں لئی دی ہے، غریب بندہ نہیں لے سکتا۔ ہسپتالوں کی راہداریوں میں مریض دہائیاں دینے لگے۔ ایک نے کہا ذہنی مریض ہوں، ڈاکٹر نے 6 ادویات تجویز کی ہیں، سرکاری فارمیسی سے صرف 2 ادویات ملی۔ ایک اور بولا معدے اور دماغ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کی تجویز کردہ 5 میں سے صرف 2 ادویات ہی ملی ہیں۔ ذہن کی دماغ کی دوائی لینے آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا، انہوں نے لکھی ہیں دوائی 2 قسم کی ملی ہیں، بس کیپسول ملے ہیں اور گولیاں ملی ہیں، باقی کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے ملے گی اندر سے نہیں ملیں گی۔ حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں ماڈل فارمیسیاں قائم کرتے ہوئے 100 سے زائد اقسام کی ادویات فراہم کی گئی تھی۔ مریضوں کو ادویات نہ ملنے پر مختلف حلقے سوال اٹھا رہے ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی دور کا MTI ایکٹ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں نئے نام سے لاگو کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز ایکٹ 2025 کا نئے ٹیچنگ ہسپتال پر اطلاق ہوگا۔ حکومت نے اس ایکٹ کے تحت سرچ اینڈ نومینیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ تحریک انصاف دور کے قانون کا سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں پر نئے نام سے اطلاق ہوگا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے ملازمین پر پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1994 کا نفاذ نہیں ہوگا۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے ملازمین کی بھرتی اور مدت ملازمت کا فیصلہ بورڈ کرے گا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملہ بورڈ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ نئے قانون سے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملے کا سرکاری ملازمت کا درجہ ختم ہوگا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ بورڈ ممبران کی خوشنودی تک ملازمت کر سکیں گے۔ نئے قانون کے تحت سرکاری ٹیچنگ ہسپتال کا بورڈ وسیع اختیارات کا حامل ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ سولر سیکٹر سے ٹیکس چوری روکنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو متحرک سولر پینل تیار کرنے والے کارخانوں میں ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری۔
खसूसी टीमें पैदावार, स्टॉक, फरोख्त और दीगर रिकॉर्ड तैयार करेंगी। एफबीआर सोलर सेक्टर से सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए इन एक्शन। सोलर पैनल तैयार करने वाले कारखानों में सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B के तहत एफबीआर की टीमें तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सोलर फैक्ट्रियों में इनलैंड रेवेन्यू ऑडिटर्स की निगरानी में दीगर स्टाफ तैनात होगा। खसूसी टीमें पैदावार, स्टॉक और फरोख्त का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। सेल्स और टैक्स अदायगियों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। रिकॉर्ड के मुताबिक कारोबार और उस पर अदा होने वाले सेल्स टैक्स का तखमीना लगाया जाएगा। सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस फैक्ट्रियों से वाजिबात की रिकवरी की जाएगी और जुर्माना भी आयद होगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमल, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि मीटर रीडर्स की मनमर्जी से छुटकारा मिल गया। फेस्को सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत अब दूर होंगी। फेस्को ने अपना मीटर, अपनी रीडिंग का आगाज कर दिया है। सार्फिन पावर स्मार्ट ऐप से अपने मीटर की रीडिंग आप कर सकेंगे। वजारत पानी और बिजली के अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे पर अमल शुरू। फेस्को में पावर स्मार्ट ऐप से रीडिंग का आगाज। आइंदा माह फेस्को सार्फिन को पावर स्मार्ट ऐप से रीडिंग की सहूलत मिल जाएगी। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा कहते हैं, सार्फिन पावर स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके अपनी माहाना रीडिंग की तस्वीर शेयर कर सकते हैं। तमाम सर्कल्स में पावर स्मार्ट ऐप का आगाज किया जा रहा है। अपना मीटर अपनी रीडिंग एक ऐप है जो है, इसके अंदर फीचर है। इस फीचर में जाके लोग अपने मोबाइल से इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो इनके बिल के ऊपर जो डेट होगी, उसी डेट के ऊपर ये अपनी रीडिंग सुबह लेके अपलोड करेंगे, जो कि हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में आ जाएगी। और उसके बाद अगर मीटर रीडर जब हमारी रीडिंग लेगा, उसका जो डिफरेंस होगा, अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो यही है कि जो सार्फिन की जो रीडिंग होगी उस डेट की, उसको कंसीडर किया जाएगा। फेस्को काम के मुताबिक पावर स्मार्ट ऐप पर कम या ज्यादा दिन की रीडिंग शेयर करने पर महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि चिन्योट के लिए पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जामे निज़ाम तैयार कर लिया गया है। जिले की तमाम तहसीलों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चिन्योट में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी मिल चुकी। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंजल कहते हैं, चिन्योट से लालियां, बुआना, पुल डिंगरू तक बसें चलेंगी। जिला भर में 12 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये जो छोटे शहर हैं वहाँ के लोगों की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो मुतारफ़ करवाने का फैसला किया है। इसमें चिन्योट जिला भी इसमें शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों से चिन्योट में 3.5 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आने जाने वालों को फायदा होगा। शहरियों ने मंसूबा खुशाइंद करार दे दिया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। शहरियों ने कीमतें मुस्तरद कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के कोड़े से नए माली साल का आगाज। पेट्रोल कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 272 रुपए 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झंग के शहरी भी पेट्रोलियम वस्तुआत महंगी होने पर नाला। बढ़ती कीमतों पर फट पड़े, बोले महंगाई के दौर में सांस लेना भी दोभर हो गया है। कीमतों में इजाफा हमारी मुश्किलात बढ़ा रहा। हुकूमत पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में कमी करे। चिन्योट के काश्तकारों ने भी सर पकड़ लिए, बोले जिन्स का रेट नहीं, फसल की लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। डीजल कीमत में 10.5 रुपए फी लीटर के इजाफे ने कमर तोड़ दी। फसल के अखराजात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अहमदपुर सियाल के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत के दाम में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तवातुर से पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़कर जीना महाल किया जा रहा है। बुआना के भी शहरी परेशान, बोले सारा दिन मोटरसाइकिल पर फेरा लगाकर गुजारा करते हैं, इतनी कमाई नहीं होती। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर किया गया इजाफा वापस ले। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आने को तैयार है। डीजल की कीमत में तगड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सर छोड़ दिए। बी क्लास बसों और फैसलाबाद के मिनी मजदा एसोसिएशन का किराया बढ़ाने का इंदिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सनती शहर का मजदूर तबका भी परेशान। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आने को तैयार। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। फैसलाबाद की मिनी मज़दा एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हुकूमत ने एक माह में 2 बार पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में इजाफा होगा। सब जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बेस पे हर चीज में महंगाई का तूफान आएगा। ये 15 दिन में 20 रुपए डीजल में जो इजाफा और पेट्रोल में जो इजाफा हुआ ना, इससे महंगाई का नया तूफान उठेगा। हमने भी कुछ कमाना है, कहां से कमाएं? चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत पर बरस पड़े। किरायों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। इजाफा हो गया रात का ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਵਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ, बड़ी मुश्किल है। डीजल की कीमत में तगड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सर जोड़ लिए। बी क्लास बसों के किराए बढ़ने का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर GS राना हबीबुल्लाह ने मीटिंग बुला ली। कहते हैं बेजा किराए बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। तो दूसरी जानिब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नई कीमत 184 रुपये 43 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की बढ़ती कीमतें महंगाई के मारे काश्तकारों की कमर तोड़ दी है। चिन्योट के काश्तकारों ने भी डीजल की कीमत बढ़ने पर सर पकड़ ली है। चिन्योट महंगाई के मारे किसान परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों ने किसान की कमर तोड़ दी। फसल के अखराजात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। मजीद बोले कि गंदम, मकई, गन्ना, धान की फसल का मुनासिब रेट नहीं मिला। फसल की लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। काश्तकारों ने हुकूमती पॉलिसियों और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। महकमा फेस्को जंग की गफलत ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मार्केट्स में फेस्को की लटकती और गुच्छेदार तारें हादसात को दावत देने लगी। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। फेस्को की नाअहली जंग के ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मार्केटों में बिजली की तारें लटकने लगी। गुच्छेदार तारों के 22 मुतअद्दिद बार शॉर्ट सर्किट और आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके, मगर फेस्को की रिवायती सुस्ती ताहाल बरकरार। ताजरों की जानिब से फेस्को को दरख्वास्त भी दी गई, मगर सुनवाई नहीं हुई। ताजरों का कहना था कि फेस्को इंतजामिया को चाहिए कि बेहंगम तारों को ठिकाने लगाने के लिए कोई इकदाम करे। बहुत मुश्किलात हैं। जब ये बारिश वगैरह होती है ना, तो हमें यहाँ शॉर्ट सर्किट वगैरह मिलते हैं, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये सही होने चाहिए। ताजरों और शहरियों की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकू आमने सामने। FIA की भी कार्रवाइयाँ। मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ भी पुलिस मुतहरिक। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हो गया। गिरफ्तार डाकू वकास अदालती मबरूर और रिकॉर्ड याफ्ता निकला। ड्राई पोर्ट रोड पर 4 डाकुओं ने शहरी से नकदी और बाइक छीनी। इतला मिलने पर थाना मिलर टाउन पुलिस ने नाकाबंदी की तो बोहर चौक में डाकुओं से सामना हो गया। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 डाकू जख्मी, 3 फरार हो गए। चिन्योट में CCD का डाकुओं के साथ मुकाबला। 21 मुकदमात में मसरूफ डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मरने वाले डाकू की आमिर के नाम से शनाख्त, असलहा और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड के इलाके में घर में डकैती की वारदात। नसीराबाद में 6 मुसल्लह डाकू गुलाम रसूल के घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने अहले खाना को जरगमाल बनाकर लूट मार की। डाकू 10 लाख रुपए नकदी और 7 तोले जेवरात छीन कर फरार हो गए। FIA फैसलाबाद कंपोजिट सर्कल ने कार्रवाई करते हुए मराकश कश्ती हादसे के इश्तिहारी मुलजिम गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 2023 से शहरियों को मराकश के समंदरी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए बतौर लैंड रूट एजेंट काम कर रहा था। मुलजिम पहले से गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अब्दुल गफ्फार और सरफराज के नेटवर्क का हिस्सा। तीनों मुलजिमान अफ्रीकी इंसानी स्मगलर अबू बकर से राबते में थे। जंग में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई। हुसनैन उर्फ टीपू गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस का मनशियात के मुलजिमों के साबिका रिकॉर्ड अदालतों में पेश करने से गुरेज। लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड की तफसीलात पेश न करने पर इजहार बरहमी। DPO जंग और DPO चिन्योट कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मनशियात के मुलजिमान की दरखास्त जमानतों पर समाअत की। IG की यकीन दहानी के बावजूद पुलिस मुलजिमान का साबका रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही। अदालत का DIG समेत दीगर पुलिस अफसरान को कल हाजिर होकर वजाहत पेश करने का हुक्म। मुलजिमान उस्मान अशरफ, मुशर्रफ खान समेत दीगर ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। तफ्तीशी अफसर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सके।
तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फेडमिक की बड़ी कार्रवाई। फराह गोगी का फेडमिक में प्लॉट मनसूख कर दिया गया। तामीराती पाबंदी पूरी न होने पर फेडमिक बोर्ड की मंजूरी से प्लॉट मनसूख किया गया। चेयरमैन बोर्ड राना असर बक्कार ने प्लॉट की मनसूखी का ऐलान किया। देखते हैं बिलाल टोकर की ये रिपोर्ट। फेडमिक बोर्ड का फराह गोगी के प्लॉट पर बड़ा फैसला। फराह गोगी ने पीटीआई दौरे हुकूमत अक्टूबर 2021 में 5-5 एकड़ के 2 प्लॉट लिए। दोनों प्लॉटों को मिलाकर एक कर लिया गया। फेडमिक कवानीन के मुताबिक प्लॉट पर तामीरात का आगाज न किया गया। चेयरमैन फेडमिक बोर्ड राना अजहर वकार ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा, ये एजाज मेरे हिस्से आया। 2021 में प्लॉट वसूल किया गया लेकिन तामीरात न की गई। फेडमिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी को रायत नहीं दी जाएगी। प्लॉट लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन न करने वालों को प्लॉट रखने का हक नहीं। बोर्ड की मंजूरी के बाद फराह गोगी के प्लॉट को मनसूख कर दिया गया है। इनका M3 में प्लॉट है और प्लॉट नंबर 255 और 256 2 प्लॉट इनके पास हैं और 10 एकड़ ये टोटल रकबा बनता है। ये 2021 में इन्होंने अपने नाम करवाया है और स्टिल अभी तक ये 2025 तक ये पेंडिंग में है। प्लॉट नंबर 255 और 256 अल मोइज डेरीज के नाम पर हासिल किया गया था लेकिन तामीरात ना की जा सकी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डुगर, सिटी 41 फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुआ। प्रोजेक्ट डिस्प्ले में बीएस टेक्सटाइल डिजाइन के तलबा ने अपना काम पेश किया। मैंने कुछ की चेन्स बनाए, विंड चाइम्स बनाए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जो आजकल ट्रेंडी हैं ताकि आजकल के बच्चे उनको फॉलो करके अपनी परांदे को नाम। मैंने गारमेंट्स बनाए हैं जिनके कुछ बैग्स हैं, कुछ वॉलेट्स हैं, फाइल कवर्स हैं और मोबाइल कवर्स हैं। नुमाइश में तलबा ने मलबूसात, डेकोरेशन पीसेस, इंटीरियर डिजाइनिंग के शाहकार पेश किए। मैंने इसको टेक्सटाइल डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन को मिक्स करते हुए इस पर काम किया है, डिजिटल प्रिंटिंग की है और एम्ब्रॉयडरी के साथ अपने सारे अपैरल्स को मैंने डिज़ाइन किया है। आज मेरे प्रोजेक्ट में ऑनचन आर्टिस्ट हैं ब्रिटिश, उन्होंने इस्लामिक ऑर्नामेंट्स पे काम किया। मिडिल ईस्ट के जो भी इस्लामिक कॉन्टिनेंट्स आते हैं तो उनको ज़रा इंस्पायर हुई थी कि एज अ ब्रिटिश आर्टिस्ट उन्हें हमारे इस्लामिक ऑर्नामेंट्स जो डिज़ाइन है उन पे ही क्यों फोकस किया। प्रोजेक्ट डिस्प्ले में किसी ने बच्चों के कमरों की डेकोरेशन का मॉडल पेश किया तो किसी ने कपड़ों की वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए जैकेट्स और बैग बनाकर पेश किए। आज मेरा प्रोजेक्ट डिस्प्ले है, ये मैंने बेसिकली अपनी लाइफ स्टोरी पे किया है लेकिन उसको रिफ्लेक्ट मैंने रेड रोज से किया है। रेड रोज की जो है खिले से लेकर मुरझाने तक के प्रोसेस को मैंने किया है। जो एम्ब्रॉयडरी मेरा टॉपिक जो है वो कैमेलियन है, मैंने उसकी कलर थीम पे उसके पैटर्न्स पे काम किया है। मेरी इंस्पायरेशन कैमेलियन से इसलिए थी क्योंकि जो उसका बेसिकली हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि वो जिस भी चीज पे बैठेगा कलर चेंज करेगा। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम, साबिक सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स निगर शाहद ने कैंपस इंचार्ज तहमीना अफजल, DSA शिराज अवान व दीगर असाजा के हमरा प्रोजेक्ट डिस्प्ले का विजिट किया। स्टूडेंट्स में वो जो स्किल्स की जिस हम बात करते हैं तो वो रियल स्किल्स उनमें डेवलप हो रही हैं जो इंडस्ट्री में जाके जिनको यूज किया जा सकता है। तो आई थिंक इंडस्ट्री शुड कम हियर, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स शुड कम हियर। इंडस्ट्री वालों को आना चाहिए और इधर से पिक करें और हर जगह हर चीज़ का कोई ना कोई आगे बिजनेस हो सकता है और ये बच्चे माशाल्लाह हमारे आने वाला फ्यूचर है और इन्हीं से हम लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिस्प्ले में तलबा ने कल्चरल और जदीद दौर के इम्तजाज पर मबनी मलबूसात समेत शानदार प्रोजेक्ट्स पेश किए। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएंगे फैसलाबाद में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम समर कैंप का छठा रोज। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वॉलीबॉल को उछालती फिरती दिखाती ये लड़कियां हिस्सा है समर कैंप का। वॉलीबॉल समर कैंप समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी है जहां लड़कियां फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना और टेक्निक्स पर काम करती दिखाई दी। कहती हैं भरपूर तैयारी कर रही हैं। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की ख्वाहिश है। कोचेस स्किल्स डेवलपमेंट पर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ पे। समर कैंप हमारा जो है इस साल भी लगा और पिछले साल भी लगा था तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और उनमें इसे कैंप करके इधर से हमारी काफ़ी सारी बच्चियाँ पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बनी हैं, उधर कैंप भी कर रही हैं। पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान डिवीज़न बोर्ड ने हमें ये कैंप प्रोवाइड किया था, इस साल भी वो करे जिससे हमने नेशनल खेला था, हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे हमारी टीम। हमने यहाँ पे इस कैंप में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सीखा है जो हमने कभी देखा भी नहीं था, वो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। हमारी बूस्टिंग हमारे